Good morning, everyone. Welcome back to in this session. And today we will continue our chapter number 5th, Footprints Without Feet. Earlier we have read that there was a scientist and his name was Griffin. He made experiment after experiment to discover a medicine through which a person can be invisible. And he made a lot of efforts. He made and he lastly he was succeeded in his discovery. कि वो succeed हो गया अपनी उस discovery में. But Griffin did not use his power, his discovery for a good work. कि he was a lawless person. वो lawless था, and that is why whatever he discovered, he misused his powers to for the wrong work. गलत कामों में वो यूज़ में लेता. he made he made so many theft, robbery. He annoyed the people. He was very eccentric kind of man. And lastly he left the London and took shelter at the in the village of Epping. There was a village named Epping. वहाँ पे उसने shelter लिया. And there also he made a theft. उसने चोरी करी. उसने वहाँ पे चोरी करी क्लर्जीमैन के यहाँ से. So today we will proceed the chapter. आगे पढ़ते हैं हम page number 22. The landlord and his wife were very early and were surprised to see the scientist's door wide open. कि landlord जो था, उसका जो मकान मालिक था और उसकी जो वाइफ थी मिसेस हॉल थी, they were highly surprised to see when they saw that the door of the scientist's room was wide open. Because why they were surprised? Because usually his room was shut and locked, and they became furious that someone has entered into his room. कि वो furious थे कि definitely उसके रूम में किसी ने कोई एंट्री कर ली है. The opportunity seemed too good to be missed. And ये जो उनको opportunity थी, it seemed too good to be missed. कि that time they felt that it was a good opportunity to see whatever is going on in the scientist room, and they didn't want to miss it. They peeped around the door. उन्होंने रूम में से झाँक, डोर जो था उसके झाँक कर देखा. पीप मतलब झाँकना. That and found nobody was there. And after that they decided to investigate. The bed clothes were cold. बेडशीट जो थी, बेड कवर्स थे, वो बिल्कुल ठंडे थे. And they were the indication that the scientist must have been up for some time. कि साइंटिस्ट जो था वो वहाँ पे नहीं था, उसने उसको काफ़ी टाइम पहले छोड़ दिया. And stranger still, the clothes and the bandages that he always wore were lying about the room. And the second thing which made them confused or surprised to see that the clothes and the bandages that he always wore, जो वो मोस्टली पहना करता था, they were lying about the room. They were lying about the room. वो पड़े हुए थे रूम में. All of a sudden, and the bedclothes were cold, showing that the scientist must have been go up for some time. And the bandages and the clothes which he always wore were lying about the room. All of a sudden, Mrs. Hall heard a sniff close to her ear. What happened? कि Mrs. Hall noticed some sniffing near to her ear. A moment later, the hat on the bedpost leapt up and bashed itself into her face. And then, if there was a hat hanging on the bedpost, they leapt up and dashed itself into her face. वो एकदम से वहाँ से निकल कर अपने आप से उनके चेहरे पे ऐसे डैश करके पड़ी. Then the bedroom chair became alive. बेडरूम का जो चेयर था वो हिलने डुलने लगा, उसमें मूवमेंट होने लगे. स्प्रिंगिंग इन टू द एयर, इट चार्ज स्ट्रेट टू हर. और हवा में डोलती हुई, स्प्रिंग करती हुई, इट चार्ज स्ट्रेट एट हर. उसको जाके स्ट्रेट उसको चार्ज किया. लेग्स फोरमोस्ट, उसके जो लेग्स थे
वो foremost. As she and her husband turned away in terror, कि जब सब कुछ इतना strange होते हुए देखा कि when they noticed all the strange things happening all around them, तो they started trembling, डर गए, and they turned away in terror, and they decided to turn back. The extraordinary chair pushed them both out of the room. That time, what happened? कि the chair pushed them both out of the room. उनको ऐसे एक धड़ाम से धक्का दिया और उनको रूम से धकेल दिया. And then appeared to slam and lock the door after them. और उसके बाद में एकदम से डोर जो था वो धड़ा डैश करके धड़ाम से आवाज़ से लॉक हो गया. मिसेस हॉल ऑलमोस्ट फेल डाउन द स्टेयर्स इन हिस्टेरिक, कि जो मिसेस हॉल थी वो इतनी टेरिफाइड हो गई, इतनी भौचक्की हो गई कि वो तो ऑलमोस्ट स्टेयर से गिरी पड़ी. शी वॉज कन्विंस्ड दैट द रूम वॉज हॉन्टेड बाय द स्पिरिट्स, दैट द स्ट्रेंजर हैड समहाउ कॉज दीज टू एंटर इन टू हर फर्नीचर. कि मिसेस हॉल थी वो पूरी तरह से कन्विंस हो गई कि ये देव जो रूम था दैट वाज हॉन्टेड बाय द स्पिरिट्स, कि भूत आत्माएं प्रेत आत्माएं वहाँ पे आ गई हैं. एंड ऑल द एंड वॉट एवर वॉज हैपनिंग देयर, जो कुछ भी वहाँ हो रहा था, वो वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट द स्ट्रेंजर वॉज रिस्पॉन्सिबल ओनली. My poor mother used to sit in that chair, and she moaned. थोड़ी सी परेशान सी होके बोली कि my mother used to sit in that chair. To think it should rise up against me now. ऐसा to think इस तरह से सोचते हुए it should rise up against me now, कि वो उसे वो जो मिसेस हॉल थी उसने उनका ये सोचना कि अब ये सब और अब ये मेरे अपोजिट मेरे अगेंस्ट में खड़ी हो रही है. The feeling among the neighbors was that the trouble was caused by witchcraft. कि when the news spread all around the village, कि the villagers थे, they thought that the trouble was caused by the witchcraft, कि ये सब जो चीज़ें हैं वो कोई witchcraft कोई जादू टोने का काम है. But witchcraft or not, जादू टोना या नहीं, when news of the burglary at the clergyman's home, जब clergyman के यहाँ पे जो theft थी, जो चोरी थी, उसकी जब न्यूज़ सब जगह फैली, people came to know the stranger scientist was strongly suspected for of having had a hand in it. तो सबसे ज़्यादा किस पे सस्पेक्ट हुआ, किस पे वो गया डाउट, कि स्ट्रेंज साइंटिस्ट के ऊपर, उस अजनबी से वैज्ञानिक के ऊपर. वाई? बिकॉज सस्पिशंस ग्रू स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर, कि उनका जो सस्पेक्ट था, उनका जो डाउट था, संदेह था, वो इसलिए इतना स्ट्रॉन्ग हो गया बिकॉज ही सडनली प्रोड्यूस सम रेडी कैश. उसने अपने पास से कुछ रेडी कैश निकाला. एंड दो ही हैड एडमिटेड नॉट लॉन्ग बिफोर दैट ही हैड नो मनी, और थोड़े टाइम पहले ही एडमिटेड दैट ही हैड नो हार्ड कैश, कि उसके पास अब हार्ड कैश नहीं है. So the question was that from where he got the money, he got the cash. So people suspected him. The village constable was secretly sent for. चुपचाप से जो पुलिस थी उसको कॉल किया. Instead of waiting for the constable, Mrs. Hall went to the scientist. कि without waiting for the police, जो मिसेस हॉल थी वो साइंटिस्ट के पास पहुंची. वो had somehow mysteriously appeared from his empty bedroom. कि वो जो थी, वो जो मिसेस हॉल थी, वो बिना किसी प्रतीक्षा के, बिना कोई वेट के उसके पास चली गई, साइंटिस्ट के पास चली गई. क्या करने के लिए? कि वो हैड समहाउ मिस्टीरियसली अपीयर्ड फ्रॉम हिज एम्प्टी बेडरूम, कि वो जो थी वो उसके पास गई. कौन? मिसेस हॉल उसके पास चली गई साइंटिस्ट के पास, और उसने किसी तरह से वो जो एम्प्टी रूम था, एम्प्टी बेडरूम था, उसमें से जो मिस्ट्री है, उसकी जो मिस्ट्री थी, जो एक अपने आप में मिस्ट्री हो गई थी, उसको रहस्यमय ढंग से जो रूम खाली था, किसी तरह से अपने खाली बेडरूम से रहस्यमय ढंग से प्रकट हुआ वो जो साइंटिस्ट था. I want to know what you have been doing in my chair upstairs.
शी डिमांडेड, उसने क्वेश्चन किया कि आई वॉन्ट टू नो, मैं जानना चाहती हूँ कि वॉट यू हैव बिन डूइंग टू माई चेयर अपस्टेयर, कि आप जो हैं, उसने बड़े उससे पूछा कि मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप मेरी के ऊपर तुमने मेरी कुर्सी पर क्या कर दिया है, क्या क्या उसके साथ मिसचीफ की है. And I want to know how it is that you came out of an empty room and how you entered a locked room. And I also want to know, मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि how you came out an empty room, जब रूम खाली था, no one was there, तो how you came how you came out from that empty room and how you entered a locked room, और तुमने जो लॉक था रूम उसमें कैसे एंट्री करी. द साइंटिस्ट वॉज ऑलवेज क्विक टेम्पर, कि वो जो साइंटिस्ट था वो बहुत ज़्यादा क्या था बेटे, बहुत शॉर्ट टेम्पर था, बहुत जल्दी से उसको गुस्सा आ जाता था. ही वॉज ऑलवेज, हमेशा से उसका बिहेवियर यही था. नाउ ही बिकेम फ्यूरियस, ही बिकेम एंग्री. यू डोंट अंडरस्टैंड who और what I am, कि यू कांट इमेजिन, यू कांट एस्टिमेट माई पावर, कि आप मुझे नहीं जानती हो और ना ही आप मेरी जो पावर्स हैं उसको जानता हो. ही शाउटेड. वेरी वेल, आई विल शो यू, डोंट वरी, मैं दिखाता हूँ, मैं दिखाऊंगा अपनी पावर. सडनली ही थ्रू ऑफ बैंडेजेस, विस्कर्स, स्पेक्टिकल्स एंड इवन नोज. फटाफट से उसने क्या किया, वॉट एवर ही वॉज पुटिंग ऑन, जो कुछ भी उसने पहन रखा था, वो बैंडेजेस थी, वो विस्कर्स थे, वो क्या कहते हैं स्पेक्टिकल्स थे, और वो नकली सी नोज थी. It took him only a minute to do this, and for that he took only a single minute. The horrified people in the bar found themselves staring at a headless man. कि उसने अपने सर पे से जो भी थे बैंडेजेस थे, विस्कर्स थे, स्पेक्टिकल्स थे, सब चीज़ों को हटा दिया. एंड द हॉरिफाइड पीपल इन द बार फाउंड देमसेल्फ स्टेरिंग एट अ हेडलेस मैन. और जो बेचारे भयभीत लोग थे, दे फाउंड देमसेल्फ स्टेरिंग एट अ हेडलेस मैन, कि उन्होंने पाया कि एक मैन जो था वो हेडलेस था, बिना सर वाला एक आदमी को उन्होंने देखा. मिस्टर जाफर द कांस्टेबल नाउ अराइव्ड एंड क्वाइट सरप्राइज. अब तक वो जो कांस्टेबल थे वो भी वहाँ पहुँच गए, अप्रोच कर गए. एंड ही हैड टू अरेस्ट अ मैन विदाउट अ हेड. और अब इट वाज हिज ड्यूटी टू अरेस्ट सच अ मैन विदाउट अ हेड. बट जाफर्स was not easily prevented from doing his duty. लेकिन वो जो जाफर थे, जो जैफर्स थे, जो वहाँ के जो पुलिस थी, कांस्टेबल थे, उनके लिए, बट जेफर्स वॉज नॉट ईजली प्रिवेंटेड फ्रॉम डूइंग हिज ड्यूटी, कि वो सरलता से, उनको कोई नहीं रोक सकता था टू परफॉर्म हिज ड्यूटी, अपनी अपनी जो ड्यूटीज़ हैं उनको परफॉर्म करने के लिए. इफ़ अ मजिस्ट्रेट्स वारंट ऑर्डर ए पर्सन अरेस्ट, कि यदि जो मजिस्ट्रेट होते हैं उसके वारंट ने, उसका आपको पता है कि किसी को भी जब हम अरेस्ट करते हैं तो हमारे पास वारंट होना चाहिए. तो इफ़ अ मजिस्ट्रेट्स वारंट ऑर्डर्ड ए पर्सनस अरेस्ट, देन दैट पर्सन हैड टू बी अरेस्टेड, कि वो उसको अपनी ड्यूटीज़ से प्रिवेंट नहीं कर सकते थे, लोग आसान नहीं था. इफ़ यदि अ मजिस्ट्रेट वारंट ऑर्डर्ड द पर्सन, कि यदि मजिस्ट्रेट जो हैं वो ऑर्डर कर दें किसी पर्सन को अरेस्ट करने के लिए, देन द पर्सन हैड टू बी अरेस्टेड. दैट टाइम द पर्सन हैड टू बी अरेस्टेड, उसे अरेस्ट किया जा सकता है विद और विदाउट हिज फीट, हेड बिना सर के या सर के साथ. देयर फॉलोड ए रिमार्केबल सीन एज द पुलिस ट्राइड टू गेट होल्ड अ मैन, कि वहाँ पे क्या हुआ, एक बहुत ही सरप्राइजिंग रिमार्केबल सीन क्रिएट हो गया. व्हेन वेल एज द पुलिस ट्राइड टू गेट होल्ड ऑफ अ मैन, जब वो उस पुलिस ट्राई कर रही थी उस मैन को होल्ड करने का, पकड़ने का, वो वॉज बिकमिंग मोर एंड मोर इनविजिबल एज ही थ्रू ऑफ वन गारमेंट आफ्टर अनदर. कब हार्ड हो गया, जब ही वॉज बिकमिंग मोर एंड मोर इनविजिबल, कि वो इनविजिबल होता गया, बहुत ज़्यादा फेंटर होता गया. एज ही थ्रू ऑफ वन गारमेंट आफ्टर अनदर, कि जैसे ही वो अपना एक कपड़ा उतार के एक के बाद एक कपड़ा उतारने लगा, तो उसकी जो फिगर थी वो इनविजिबल होती गई. फाइनली
A shirt flew into the air. और लास्टली क्या हुआ बेटे कि जो शर्ट था उसको हवा में से फेंक दिया गया, flew into the air, and the constable found himself struggling with someone he could not see at all. And that time the constable found himself, उसको ऐसा लगा that he was struggling with someone, क्योंकि वो किसी के साथ लड़ाई झगड़ा हो रहा है, किसी के साथ उसकी स्ट्रगलिंग हो रही है, with the someone he could not see at all, जिसको कि वो देख तो नहीं पा रहा है पर उसको साथ उसकी लड़ाई हो रही है, उस चीज़ को महसूस कर पा रहा है. Some people tried to help him but found themselves hit by blows that seemed to come from nowhere. कि जो लोग बाग थे, जो आसपास के लोग थे, they tried to help him, उसकी कोशिश करने लगे कि उसको हेल्प करें कांस्टेबल को, but found themselves hit by blows that seemed to come from nowhere. But what happened कि वो खुद जो थे they found themselves hit, कि उन्हें लगा कि उनको भी हिट किया जा रहा है बाय द ब्लो दैट सीम टू कम फ्रॉम नोवेयर, कि उनको भी हिट किया जा रहा है बट वो पहचान नहीं पा रहे थे कि कौन उसे हिट कर रहा है, कहाँ से उनको मार पड़ रही है. इन द एंड जेफर्स वॉज नॉक्ड अनकॉन्शियस. और लास्ट में वो इतना ज़्यादा थक गया और इतना ज़्यादा उसको इतनी चोट आई, वो इतना ज़्यादा परेशान हो गया वो कांस्टेबल जो थे. इन द एंड जेफर वॉज नॉक्ड अनकॉन्शियस, बिल्कुल बेचारा अनकॉन्शियस हो गया, उसको वो कॉन्शियस में नहीं रहा. एज ही मेड अ लास्ट अटैम्प्ट टू होल्ड ऑन टू द अनसीन साइंटिस्ट, कि जब उसने खूब ही ट्राइड हार्डली, खूब कोशिश करी उस साइंटिस्ट को पकड़ने की, बट ही वॉज हेल्पलेस, बेचारा अनकॉन्शियस हो गया, हेल्पलेस था. देयर वर नर्वस एक्साइटेड क्राइज ऑफ होल्ड हिम, कि वहाँ पे एक बहुत ही नर्वस सी एक्साइटेड सी आवाज़ आ रही थी, चिल्ला रहे थे लोग बाग, डर रहे थे, होल्ड हिम, पकड़ो उसको. बट दिस वॉज ईजियर सेड दैन डन, बट इट वॉज क्वाइट ईजियर टू से कि येस होल्ड हिम, बट इट वॉज नॉट सो ईजी, इतना आसान नहीं था. Griffin had shaken himself free, and no one knew where he lay hands on him. कि ग्रिफिन जो था ही मेड हिमसेल्फ फ्री, उसने अपने आप को मुक्त कर लिया था. एंड नो वन न्यू, और किसी को नहीं पता था, वेयर टू ले हैंड्स ऑन हिम, कि कहाँ से उसके हाथों को होल्ड किया जाए, कि कहाँ से उसको अपनी गिरफ्त में, अपनी अपनी अप्रोच में लिया जाए. सो दिस इज़ द स्टोरी. ये अपना ख़त्म होता है चैप्टर. एंड चिल्ड्रन, later on I will send you the PDF of the question answers, so read them well, and if you have any query or any problem, so you can call me on my personal number. Thank you and have a nice day.